नमस्कार, डॉक्टर स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र और मेरे साथ है मेरे सहयोगी गौतम राय। कोविड संक्रमण हर दिन नई चुनौती लेकर सामने आ रहा है और इस बीच सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन कराया जाए और कोविड प्रोटोकॉल यानी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन अक्षरशः किया जाए। हर हाल में सावधानी बरती जाए, घर हो या फिर बाहर, दफ्तर हो या फिर काम करते वक्त, जहाँ भी आप जाएं वहाँ पर मास्क जरूर लगाएं। देखिए, हम दोनों ने दूरी भी बना रखी है, हमने मास्क भी लगा रखा है, जबकि हम यहाँ पर हैं जहाँ पर 2 ही 3 4 लोग हैं। लेकिन जब आप सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं तो मास्क ही सबसे बड़ा आपका बचाव है। हैंड और ओरल हाइजीन यानी कि हाथों का और चेहरे का जो सफाई है उसका खास ध्यान रखें। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे कोविड मरीजों के साथ साथ जो कोमॉर्बिड कंडीशंस होते हैं, जो अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोग होते हैं, उनकी क्या कुछ स्थिति होती है, क्या कुछ एहतियात बरतें और कैसे कुछ इलाज करें। Yes, certainly, Ashwini, that is a main area of concern because comorbidities are something that one has to be very, very careful with. We do know that those patients require specialized attention if they become COVID infected, and that is something that they have to do in very close coordination with their physician or their specialist, whoever they have been consulting. And to take up the issues of COVID patients with comorbidities, we have a panel of experts with us today. Let's introduce you to them as well. Joining us today are Dr. Ashok Chaudhary, Associate Professor ILBS in Delhi. We also have Dr. Naveen Dutt, Additional Professor Pulmonary Medicine at the AIIMS in Jodhpur. And we have Dr. Satyendra Narayan Singh, Professor in HOD, Microbiology, Patna Medical College and Hospital. Good afternoon to you all. First, Dr. Chaudhary, if I could ask you, in terms of comorbidities, there are certain specially non-communicable diseases that have been in focus for quite some time ever since this pandemic broke out, and now that the infectiveness of this current strain is pretty high, what should patients of comorbidities who have still managed to evade, thankfully managed to evade COVID so far, what kind of precautions do they need to take? Is there anything extra that they need to do from all the other people? Yeah, you are rightly said. So, the first of all thing is the vaccine. The persons who are with comorbidities, they have a high chance of having a disease. And if they have a disease of COVID, they are going to have a more severe illness. So, we need to ensure that they should get vaccinated, and there is no roadblock. If you have any doubt about the vaccines, whether I should receive or no, please have a visit to your doctor or maybe whoever is following you. So that is the first of one. Second, the next important part to told us the COVID appropriate behaviors or social vaccines. I think because of this COVID remaining for more than 1 year, people should get used to whether this behavior is to be followed strictly or no. Second, the sense of security is that being vaccinated I am protected. That is not true, that is false. So that's why we have to adopt 2 vaccines, what I can say. One is the vaccine, and this COVID appropriate behavior is, you can say, as the social vaccine. So our mask, sanitization, everything as well as social distance should be followed as before. And third, you don't need to visit the hospital unless it is not justified or it's not needed right now, because the hospital or the mode of conveyance can be a risk to get infections. So stay home, get protected with the vaccines, follow COVID appropriate behaviors. This is what I can say for the people who are having comorbidities. जी, डॉक्टर नवीन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उस हिसाब से 60 साल से उम्र के ज़्यादा लोग या फिर कोमॉर्बिड कंडीशंस के लोग सामान्यतया वो होम आइसोलेशन में नहीं रहें क्योंकि वो हाई रिस्क में होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के उपचार के दौरान या उनकी सलाह पर होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। अगर वो होम आइसोलेशन में हैं और कोमॉर्बिड हैं तो फिर वो क्या कुछ एहतियात बरतें? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं, और आपने एक बहुत ही अप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछा, क्योंकि बहुत सारी डायबिटीज और हाइपरटेंशन दो ऐसी कोमोर्बिडिटी है जो बहुत सारे लोगों को होती है, स्पेशली जिनकी उम्र ज़्यादा है। तो और हमने देखा अभी पेंडेमिक में ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि हम सभी लोगों को भर्ती नहीं कर पा रहे थे जिनको करना चाहिए था। तो ऐसी कंडीशन में काफ़ी लोग जिनको कोमोर्बिडिटी थी वो घर में थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऐसे मरीजों को
जो बीमारी के सीवियर होने के और उससे नुकसान पहुंचने के चांस और नॉर्मल पॉपुलेशन से ज्यादा होते हैं। तो इसमें दो चार चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। एक तो सबसे पहले तो कि पानी बहुत सारा पिए। अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो पानी पिए, क्योंकि हमें थ्रोम्बोसिस अवॉइड करना होता है। इसके अंदर, इस बीमारी के अंदर जो खून की नालियां हैं उसके अंदर जो ब्लड क्लॉट हो जाता है कई बार। तो और जिनके अंदर कोमोर्बिडिटी होती है, जिनके अंदर पहले से कोई बीमारी होती है, उसके अंदर चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो पानी पीते रहें कम से कम 3-4 लीटर। अगर आपको कोई हार्ट की और कोई किडनी की डिजीज नहीं है, और अगर आपको किडनी या हार्ट की डिजीज है तो आप अपने डॉक्टर से बात करके कि आप कितना पी सकते हैं। और दूसरा, चलते फिरते रहें। इस बीमारी में थकावट काफी आती है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि थोड़ा बहुत हर पूरा दिन बिस्तर पे ना लेटे रहें, चलते फिरते रहें, ताकि जो ब्लड है वो इकट्ठा ना हो पाए। और अगर ऑक्सीजन कम हो रही हो तो चाहे बिस्तर में ही बैठ के अपने पैर को इस तरह हिलाते रहें। तो और तीसरा है, जैसे ही सैचुरेशन कम होती है, जब हम कहते हैं कि 94 के लेवल पे आ जाती है, तो एक बार अपने डॉक्टर से बात कर लें कि वो आपको अच्छी तरह बता पाएंगे कि घर में ट्रीटमेंट की जरूरत है या आपको अस्पताल में जाने की जरूरत है। क्योंकि एक बार इन्फेक्शन होने के बाद आप होम आइसोलेशन में हो तो उसके बाद आपका कोमोर्बिडिटी का रोल, जो इन्फेक्शन होने में जो था वो तो क्योंकि इन्फेक्शन हो चुका है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको ऐसे लोगों के अंदर बीमारी के विपरीत प्रभाव ना पड़े, इसके लिए बस कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। Right, right. We have an interesting question coming in, and I wonder if you could take it, Dr. Satyendra Narayan Singh. The question is from Priyanshu Garg in Ghaziabad. Now, he wants to know, is it necessary that only the plasma of a patient who's recovered from COVID-19 can be used for antibodies? Or will the plasma of someone who's got 2 doses of any of the vaccines, will that work as well? Should I speak? Dr. Singh, can you hear me? Yes, yes. देखिए, I'm speaking in Hindi जी because Hindi is our national language. Most of the people. जी, आप अपने टीवी की आवाज़ पहले बंद कर लें प्लीज़। हाँ, देखिए, प्लाज्मा में हम लोग एंटीबॉडी देते हैं। प्लाज्मा में हम लोग एंटीबॉडी देते हैं क्योंकि कोविड के अगेंस्ट में, वायरस के अगेंस्ट में लड़ता है, वो काम करता है। इसलिए जो रिकवर्ड पेशेंट है, चाहे वो जो कोविड का पेशेंट है रिकवर नहीं कर रहा है, उसमें ये काम कर सकता है। ऐसी बात नहीं है। काफ़ी हम लोगों ने केसेस देखे हैं जिसमें कि प्लाज्मा थेरेपी का काफ़ी अच्छा रोल है, क्योंकि रेडीमेड एंटीबॉडीज वो मिल जाती है, इसलिए वो काफ़ी इफेक्टिव होता है। और भी कोई क्वेश्चन हो, इन्वेस्टिगेशन खास करके, तो मैं इसका एक स्पेशलिस्ट हूँ, बताऊँगा आपको। इन्वेस्टिगेटिव पार्ट, PCR चाहे और कोई चीज़ प्रॉब्लम हो, किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो सब हमें से पूछ सकता है। वायरोलॉजिस्ट हो, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो, इतने तरह के टेस्ट हो रहे हैं, तो वो मैं आपको प्रकाश डाल सकता हूँ। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ बहुत स्पष्ट नहीं आ रही है, टीवी का वॉल्यूम भी आप थोड़ा कम करेंगे। और डॉक्टर अशोक चौधरी जी, आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले हम प्लाज्मा थेरेपी की बात कर रहे थे, या प्लाज्मा का सवाल हमें दर्शक ने पूछा। अभी कुछ गाइडलाइंस आई हैं कि प्लाज्मा थेरेपी। हमारे साथ एक दर्शक हैं इस वक्त फोन लाइन पर, अशोक सचदेवा दिल्ली से, उनसे बात कर लेते हैं पहले। अशोक सचदेवा, प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। हाँ जी सर मेरे ना 2 क्वेश्चन है जी सर। मैं और मेरी वाइफ दोनों सीनियर सिटीजन है, तो हमने वैक्सीनेशन की दोनों डोज ली हुई हैं और दोनों पॉजिटिव हैं। तो सर मेरी वाइफ को ना कफ बहुत है, शुड वी निमोलाइज फॉर दैट? निमोलाइजर लेना चाहिए हमें? Okay, Dr. Ashok Chaudhary, would you like to respond to that? They have had both doses of vaccine, but they have come out to be COVID positive, and they have some symptoms like coughing, and he's asking if they should nebulize themselves to, you know, get some relief. देखिए, पहले तो मैं बताऊंगा कि ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि दोनों वैक्सीन लेने के बाद कोविड पॉजिटिव हुआ है, फर्स्ट। सेकेंड है कि कितने दिन सेकेंड डोज लेने के बाद हुआ है वो पता करना पड़ेगा कि यूजुअली प्रोटेक्शन तो अराउंड 80% एबव होता है। एंड अभी जब भी हुआ है तो घबराए मत, क्योंकि वैक्सीन के बाद जो इलनेस काफी माइल्ड तरीके होते हैं, जल्दी खत्म हो जाए। एंड जो कफ है उसके लिए
टीबी इज नॉट ए राइट फोरम कि मैं आपको दवाई बताऊं, बट जैसे आपने पूछे कि आप डेफिनेटली कभी भी ऐसे ये करिए कि जब भी आपकी कोविड को भी पॉजिटिव आ रही है, चाहे एसिम्प्टोमेटिक है, माइल्ड सिम्टम्स है या ज्यादा सिम्टम्स है, डॉक्टर तो इसी के लिए मैं बोल आपको जब भी पहले कभी कोई डॉक्टर की फॉलो अप में थे या अभी आप काफी सारे टेली मेडिसिन ऑनलाइन होते हैं, काफी सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो फ्री में टेली सर्विसेज देते हैं, आप उनसे ये सलाह लीजिए, बिकॉज एक बार फॉलो अप बोलना टीवी से इज नॉट गुड, क्योंकि आपको इसमें रेगुलर फॉलो अप लेना पड़ेगा। तो इसी के लिए मैं बोलूंगा कुछ कफ सिरप्स, कुछ गार्गलिंग्स ये करिए अभी, एंड जो इनहेलेशन लेना होगा उसके लिए कुछ आया हुआ है दवाई जिसके नाम नहीं बताऊंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू प्रमोट द ओवर द काउंटर मेडिकेशंस। आजकल लोग लंबा लाइन हो जाती है मेडिसिन स्टोर सामने कि डॉक्टर साहब वो दवाई दे दीजिए, वो नेबुलाइजर दे दीजिए, तो इसी के लिए मैं दवाई तो नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा किसी डॉक्टर से लेना है आप बिल्कुल जरूर सलाह करिए, बट घबराइए मत, कोई ज्यादा बीमारी ये होने वाला है नहीं है, एंड बिल्कुल आपके घर के पास डॉक्टर या जो आपको फॉलो अप उनसे टेली कंसल्टेशन करिए प्लीज। जी डॉक्टर नवनीत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे कि हमारे दर्शक ने जो सवाल प्लाज्मा से संबंधित पूछा था, कुछ अभी चीज़ें आई हैं, कुछ एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि इसका जो उपयोग उतना कारगर नहीं है, या फिर ये वायरस के नए म्यूटेंट्स को बढ़ावा देने में भी काम कर रहा है, मतलब कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी है। इस बारे में आपकी राय जानना चाहेंगे कि क्या कुछ आपकी राय में ये है? सबसे पहले तो मेरा नाम थोड़ा सा छोटा नवनीत की बजाय नवीन है, नवीन दत्त है ना। तो दूसरा आप पूछ रहे हैं कि वैक्सीन जो नए नए वेरिएंट्स को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, ऐसा कुछ लोगों का मत है। नहीं, अभी प्लाज्मा थेरेपी काफी तेजी से चल रही, प्रचलन में भी है, और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि प्लाज्मा से नए वेरिएंट्स बनते हैं, या फिर वो उतनी लॉजिकल थेरेपी नहीं है, कुछ कारगर नहीं है, उतना कारगर नहीं। तो डेफिनेटली प्लाज्मा थेरेपी उतनी कारगर नहीं है जितनी हम यूज कर रहे हैं। तो ये पहली बात, तो ये जिस तरह की पॉपुलेशन में हम यूज कर रहे हैं, हम ज्यादातर यूज कर रहे हैं जो मरीज वेंटिलेटर पे हैं और सिक हैं, उनके अंदर एक रेस्क्यू मेजर की तरह यूज की, हम इसको ट्राई करके देख लेते हैं, हो सकता है पेशेंट बच जाए। ऐसे मरीजों के अंदर यूज करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी है ही नहीं। अगर किसी के अंदर ये ट्राई करने के लिए तो बहुत माइल्ड डिजीज, जिनकी ऑक्सीजन भी कम नहीं है, और वहां पे और जो हाई रिस्क है, ऐसे मरीजों के लिए ये थेरेपी थोड़ी बहुत कारगर हो सकती है, और ऐसे में हम यूज नहीं कर रहे हैं। हम जिस मरीजों में यूज कर रहे हैं वो ज्यादातर ऐसे हैं जो आईसीयू में वेंटिलेटर पे हैं, तो ऐसे मरीजों में यूज करने के लिए ये थेरेपी है ही नहीं। तो मतलब ये नुकसान करने के ज्यादा चांस है, फायदा तो नहीं करेगी डेफिनेटली। और दूसरा, अभी कुछ हम भी मीडिया में देख रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं, कहीं कहीं लिखा होता है कि इससे जो म्यूटेशन हो सकती है, नए वेरिएंट्स आ सकते हैं। तो अभी ऐसा कोई हमारे पास बहुत डेफिनेट एविडेंस नहीं है कि इसकी वजह से कोई आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर ये यूजफुल होने का चांस नहीं है तो हमें यूज नहीं करनी चाहिए। और ऐसी स्टेज में ये जबकि ये नुकसानदायक भी हो सकती है, तो हमें इसको यूज करके देखने की जरूरत शायद नहीं है। जी ओके, हमारे पास कुछ और सवाल, वी हैव सम मोर क्वेश्चंस कमिंग इन। सॉरी, मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा डॉक्टर, माफी चाहूंगा, मैं कुछ ऐड करना था प्लाज्मा के बारे में। गो अहेड डॉक्टर चौधरी। हाँ, प्लाज्मा के बारे में इतना नेगेटिव्स तो नहीं है, बट ये प्रॉब्लम है कि हमारे डिसीजंस लेने में काफी टाइम लोगों को इतना लग रहा है कि प्लाज्मा इज द ओनली थेरेपी, प्लाज्मा जितना सीरियस मरीज है उनको ठीक कर लेगा। तो इसी के लिए प्रॉब्लम है, प्लाज्मा को एक सिलेक्टिव टाइम में, वेरी अर्ली स्टेज में एंड सीवियर डिजीज एंड द बिगिनिंग में, तो अभी ये डिसीजन हम लेना चाहिए। तो प्लाज्मा के लिए हम पब्लिक में ये बोल सकते हैं कि प्लाज्मा का रोल थोड़ी सी है, लिमिटेड है, जो कि आप डॉक्टर जो ट्रीटिंग टीम है उनके ऊपर छोड़ दीजिए। जब भी प्लाज्मा आपका 7 डेज से ज्यादा बीमारी हो गया, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि काफी सीवियर बीमारी वेंटिलेटर में, उस टाइम इसकी रोल काफी कम होता है। तो इसी के लिए प्लाज्मा ऐसे हम इनइफेक्टिव नहीं बोल सकते, बट इसके रिजल्ट्स मिनिमम है। और दूसरी जो बता रहे गाइडलाइन बना हुआ है, उसमें बोला कि इरेशनल यूज इज नॉट की यूज ऑफ प्लाज्मा, कि प्लाज्मा जब इरेशनल यूज करते हैं तभी ये प्रॉब्लम्स आते हैं। सेकेंड, आपने जो बोला कि म्यूटेशन हो जाती है, म्यूटेशन की चांस इसी के लिए होती है कि वायरस जो है वो ट्राई टू इवेट द मैकेनिज्म, एंड अभी जो वायरस को हम जो दे रहे इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको जो प्लाज्मा हम दे रहे उसमें वो उससे बचाने की कोशिश करता है।
पे ब्लड स्प्रेड होती है तो सब्सिक्वेंट पर्सन को ये म्यूटेशन होने का चांस होता है। तो इसी के लिए प्लाज्मा लिमिटेड यूज सारे जो है वो डॉक्टर या ट्रीटिंग टीम के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि काफी टाइम होता है कि जब मरीज सीरियस है उस टाइम पेशेंट की रिलेटिव्स की प्रेशर आती है डॉक्टर के ऊपर, ट्रीटमेंट हम प्लाज्मा देना चाहते हैं। तो ये सब चीज मैं बोलूंगा कि आप उसके घबराइए मत, अभी मेडिसिन काफी सारे आ गए हैं तो बिना प्लाज्मा में हो सकता है, ये मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। Okay, okay. Well, we have another viewer, Neha Virendra Singh, who wants to know that his wife is 31 years old and she took rituximab injection in October 2020 due to some neuro problem. And now, can she take the vaccine? Dr. Satyendra Narayan Singh, would you like to answer? हाँ, देखिए वैक्सीन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। वैक्सीन आप ले सकते हैं, लेकिन वैक्सीन में क्या क्या है कि जैसे कि कोई भी कोविड का पेशेंट है, वो रिकवर किया है, उसके 2 महीने के बाद वैक्सीन लेनी चाहिए। और अगर वो फर्स्ट डोज मिल गया है उसको, तो अगर कोविशील्ड है तो कोविशील्ड वालों ने कहा कि भाई 3 से 4 महीने के बाद दीजिए। मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ कि भाई 3 से 4 महीने का गैप, क्योंकि ब्रिटेन ने 3 महीना का गैप कर दिया, कनाडा और जर्मनी ने 4 मंथ का गैप कर दिया। इससे क्या फायदा होता है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने का मौका मिलता है, क्योंकि वैक्सीन का प्रोडक्शन ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत कम है, इसीलिए वैक्सीन तो हम लोग दे ही सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन वही देखना है कि भाई गैप अगर ज्यादा, कोई भी वैक्सीन हम देते हैं चाहे इन्फेक्शन होता है तो वो एंटीबॉडीज जो बनती है वो 3 महीने पे पीक पे रहती है। तो एक कहावत है इंग्लिश में, स्ट्राइक व्हेन आयरन इज हॉट, तो 3-4 महीने में पीक पे एंटीबॉडीज रहती है। इसी समय इसीलिए हम लोगों ने कहा कि भाई 3-4 महीने में अगर देंगे हम सेकेंड डोज तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। लेकिन हमारा कोवैक्सीन में अभी वैसी बात नहीं चल रही। कोवैक्सीन में लोग कह रहे हैं कि 4 से 6 हफ्ते में देनी चाहिए, लेकिन कोविशील्ड में तो प्रूफ है, चाहे और भी मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन भी आ रही है कि 3 से 4 महीने में लोग प्रीफर कर रहे हैं। तो स्ट्राइक व्हेन आयरन इज हॉट वाली बात है, 3 महीने में एंटीबॉडी प्रोडक्शन पीक पे हो। जी, हमारे डॉक्टर साहब एक दर्शक हमारे जुड़ चुके हैं, अजय कुमार बोकारो झारखंड से। अजय, आप अपना सवाल पूछें। हेलो, आप अपना सवाल पूछे अजय। हाँ बोलिए। जी नमस्कार, मैं अजय बोल रहा हूँ बोकारो से। सर मुझे एक्चुअली मेरा उम्र 55 साल है और मुझे सीरियस एलर्जी है मेट्रोजिल ग्रुप ऑफ मेडिसिन से। मेट्रोजिल ग्रुप ऑफ मेडिसिन खाने से ही मेरा पूरा आंख जो है ब्लाइंड हो जाता है, आंख रेड होकर के आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग एंड आई एम अंडरवेट ऑल्सो, वेरी अंडरवेट, माई वेट इज अराउंड 48 kg। शुड आई टेक द वैक्सीन और नॉट? ओके डॉक्टर चौधरी। देखिए वैक्सीन तो आप ले ही सकते हैं, कोई भी चीज हम लोग इंजेक्ट करते हैं, वहाँ हमारी नर्सेज वेल प्रिपेयर्ड रहती हैं एंटी एलर्जिक ड्रग लेके। तो आप एविल का इंजेक्शन चाहे और भी एंटी एलर्जिक लेके आप ले सकते हैं जो वैक्सीन, तो वो फॉर द टाइम बीइंग प्रिवेंट तो कर देगा आपको एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, आप ले सकते हैं, वैसे कोई बात नहीं, एंटी एलर्जिक ड्रग का कवर होना। Okay, I hope that answers your question, Ajay. You can go ahead and vaccinate. It's not an वैक्सीन issue. के टाइम एंड वैक्सीन के बाद की जो ऑब्जर्वेशन पीरियड है आपके लिए स्पेशल है, तो उसके लिए आपने सारा मेडिकल टीम जो वहाँ के इनको रेडी मतलब प्रॉपर सुपरविजन के रहना पड़ेगा, तब ये वैक्सीन ले सकते हैं। आपको ट्रीटिंग डॉक्टर टीम है वहाँ पे उनको महसूस कोई आपकी आवाज हमको बेहतर नहीं मिल रही है, अगर आप बेहतर नेटवर्क में रहें तो और ज्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर नवीन जी आपसे जानना चाहेंगे कि हाँ, इसमें मेट्रोजिल दवाई का यूज नहीं होता है वैक्सीन बनाने के लिए, तो इसके लिए ये वैक्सीन सेफ रहेगी और ये ले सकते हैं जाके, इसमें कोई ज्यादा इशू नहीं रहेगा। जी Okay, okay. We have some more questions coming in on Facebook. In fact, Sharad Chandra wants to know, Sharad Chandra Patel, what is the reason for pneumothorax after recovering from COVID? He wants to know if there is a correlation between these two conditions, and if there is, then what should one make of it? Dr. Chaudhary, if
we are connected. Could you respond? Yeah. So we are going to talk about the pneumothorax, I think. Yes. Yeah. So pneumothorax is a problem. That means it is the air inside the lung. So it can happen very much in a sick patient when they are on some ventilatory supports. Ventilatory support can be, one is from the external, another is from by the internal. जी So if it is there, so because in case of COVID, you get a stiff lung, that means ventilation is very difficult. So you have to use a proper high machine with a high power. So we call it as barotrauma. So you get a pressure to cause some injury. That is one part. Second, if you are having a pre-existing lung disease, what we told as the some COPD like that, or there is some cavity inside the lung we call as bulle, so they may get rupture. So, and third, and rare is very severe infection can cause itself also a pneumothorax. So pneumothorax is a very serious complications. It is very uncommon to happen, but however it happens, it can be managed depending upon your disease severity. So just putting a chest tube or drain when the air has been drained out, so then the pneumothorax can be managed. But pneumothorax is one of the part of your disease. If your disease is severe, then the things are going to be downhill course. So pneumothorax, if it happened, then your treating team is taking care of that. Second, if should be optimistic that if your patient is relatively stable, you may come out of this crisis. And if his patient is very severe, then this pneumothorax will be an additional problem to cause further deterioration. So pneumothorax is a double-edged sword. It can be manageable or it can add to your disease to cause more deterioration. So this is the way you have to think of. जी हमारे एक दर्शक हैं महेंद्र चौहान, फेसबुक पे एक सवाल पूछ रहे हैं कि मैं 2 मई को कोविड पॉजिटिव हुआ था, हमने अपने को आइसोलेट कर लिया और अब 14 दिन बाद मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे लिवोसिट्रिजिन से इनको एलर्जी है और इसके अलावा एसिड रिफ्लक्स के भी ये पेशेंट हैं। क्या ये एजिथ्रोमाइसिन और ये सब चीज़ें ले सकते हैं और कब वो परिवार से घुल मिल सकते हैं? डॉक्टर सत्येंद्र नारायण सिंह जी। देखिए, वो आजकल नया गाइडलाइन आया है कि जो एक बार पॉजिटिव हो गया फिर 14 दिन के बाद 2 हफ्ते के बाद टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अगर वो नॉर्मल है तो नॉर्मल है, ठीक है, वो घुल मिल सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा अगर थोड़ा जानना है कि भाई क्यूरियोसिटी रहती है कि हम पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं, तो टेस्ट करा सकते हैं, रैपिड एंटीजन करा सकते हैं। रैपिड का तो 5 मिनट में 10 मिनट में रिजल्ट पता चल जाएगा। आजकल रैपिड एंटीजन हमारा ज्यादा सेंसिटिव हो गया है क्योंकि बहुत ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन हो गया है ना, जेनेटिक म्यूटेशन बहुत हो जाने से पीसीआर टेस्ट हमारी जो पीसीआर टेस्टिंग थी वो जीन बेस्ड टेस्टिंग, जेनेटिक टेस्टिंग, जीन आधारित टेस्ट है जिसमें 2 जीन डिटेक्ट करते हैं। तो जब जेनेटिक म्यूटेशन हो जाता है तो इसमें पीसीआर जो टेस्टिंग है हमारी लेस सेंसिटिव होगी। तो इसमें आजकल बहुत सारे केस हम लोगों के मिल रहे हैं कि रैपिड एंटीजन पॉजिटिव, पीसीआर नेगेटिव, रैपिड एंटीजन पॉजिटिव। दिस इज व्हाट ऑन अकाउंट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक म्यूटेशन, क्योंकि इनन्यूमरेबल जेनेटिक म्यूटेशन हो गया। इसलिए रैपिड एंटीजन पे भरोसा रखें। बहुत ज्यादा आपको शक है, थोड़ा सा आप आश्वस्त होना चाहते हैं तो रैपिड एंटीजन करा के देख लीजिए, वो तो 10 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि क्या है। और उसके बाद अगर नेगेटिव आता है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप आराम से अपना निश्चिंत होकर बेफिक्र अपने परिवार से जुड़ सकते। 5 दिन देख लीजिए और 2 महीने, ये 2 हफ्ता है तो 1-2 दिन और सही, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन रैपिड एंटीजन पे ही आप जाएं क्योंकि पीसीआर रिपोर्टिंग बहुत वो अभी जेनेटिक म्यूटेशन से काफी वो गलत रिपोर्टिंग आ रही है पीसीआर की, और पीसीआर का रिपोर्ट भी बहुत लेट मिल रहा है। दूर दराज से हमारे लैब में आते हैं पीसीआर वाले टेस्टिंग कराने, तो 5 दिन तो कम से कम लगता ही है, 2-3 दिन तो भेजने ही में लग जाता है। इसलिए पीसीआर पे अभी भरोसा नहीं करना है, रैपिड पे भरोसा करना है। जी ओके हमारे साथ एक कॉलर, वी हैव अनदर कॉलर जॉइनिंग अस फ्रॉम रायपुर इन छत्तीसगढ़। धनंजय आप अपना सवाल कीजिए। हाँ नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल ये है, सबसे पहले तो मैं आपका खूब धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे से मार्गदर्शन दे रहे हैं हमें। शुक्रिया। मेरा सवाल ये है कि मेरे को कोविड पॉजिटिव हुआ था, 17 दिन
जी सवाल मेरा- पूछिए। धनंजय, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मेरा कोविड पॉजिटिव हुआ था हम्म, और मेरा अभी 17 दिन पूरा हो गया है क्वारंटाइन। ओके। और मेरे को पहले 6 दिन मेरे को बीमारी थी, फीवर था। अभी कोई ये नहीं है, अभी कोई लक्षण नहीं है। अच्छा, तो अभी मेरे को डी डाइमर टेस्ट कराना चाहिए। और दूसरा ये कि और क्या मेरे को ख्याल रखना चाहिए? अभी कोई तकलीफ नहीं है आपको? अभी कोई तकलीफ नहीं है। हाँ जी। अच्छा, अभी डॉक्टर कोई नवीन तकलीफ दत्त, आप इनका जवाब देना चाहेंगे? नहीं। हाँ, 17 दिन हो गए हैं और अभी मैं करीब 20 दिन हो गए हैं मेरे। अच्छा, आप रहिए लाइन पर, डॉक्टर साहब जवाब दे रहे हैं। हाँ जी। हाँ धनंजय जी, आप ये बहुत अच्छी बात है कि आप बिल्कुल बिना किसी परेशानी के ठीक हो गए हैं। तो अब आपको 17 दिन बाद ना कोई बुखार है, ना खांसी है, जुकाम है, कोई भी चीज़ नहीं है। तो आप बिल्कुल चैन से आप अपने घर में रह सकते हैं, बाहर काम भी कर सकते हैं, आपको किसी टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है ना। बस आप अपने खाने का, क्योंकि शरीर में कमजोरी आती है बीमारी से, उसको दूर करने के लिए आप पानी अच्छे से पिए, खाना प्रोटीन आपको ठीक से लेना है और बैलेंस डाइट लेनी है जिसके अंदर विटामिन हो, प्रोटीन हो, है ना। तो सिर्फ यही लेना, उसके लिए आपको अलग से और कुछ करवाने की अभी जरूरत नहीं है। चलिए, अपना ख्याल रखिए धनंजय जी, और थोड़ा निश्चिंत होकर अब आप अपना काम कर सकते हैं। ये शायद हमेशा कहा जाता है कि एकदम से बहुत ज़्यादा काम मत करिए, धीरे धीरे अपना वर्कलोड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और हमारे साथ और सवाल आ रहे हैं फेसबुक पर। वी हैव मोर क्वेश्चन। जयप्रकाश फ्रॉम पटना वांट्स टू नो दैट इफ someone got an antibody test done in November and it was 5 points, so is that person still safe, or can that person get vaccinated now? Dr. Chaudhary, would you like to respond? Yeah. So you are telling that titer is 5 in the month of November. Yes. So we think that this titer goes in a downtrend over the time. So by 3 months it will go further down, and by 6 months it goes further down. So we have not long-term studies, but by 6 months this vaccine or the titer related to infection will go down. So if it is in the November, so now we need to do another titer to see most likely may have come down. Second, if you have taken vaccine that time, then you are not allowed to take vaccine now, because still the Government of India guidelines is 2 doses only, irrespective of the antibody titers. So titer is not going to help you most at this time. Please, if you are aware of your titers, please go through your vaccine history. If you have been vaccinated 2 times, then just relax and follow the next COVID appropriate wear, that is the social vaccine. If you have not taken vaccine, this titer is because of antibody related to infection, then you should take the 2 doses of vaccine now and relax. Then no more need to do the antibody titers, unless the government guideline has come up that if titer is low, we are going to give a 3rd dose or booster dose, which is unlikely at this moment of crisis, at the time of number of vaccines being inadequate. So please follow the 2 vaccines, relax and be comfortable. जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं गुड़गांव से, वरुण आप अपना सवाल पूछो। हाँ जी सर, मेरे को 4-5 दिन से फीवर था और खांसी है, तो मैंने RT-PCR टेस्ट कराया, उसमें मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो नेगेटिव आने के बाद डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप CT स्कैन करवाओ। तो CT स्कैन करवाए तो मैंने टोटल पॉइंट्स मेरा 14 आया है और उन्होंने बोला कोरोना पॉजिटिव है जी। अच्छा, तो ये क्या कोरोना के लक्षण है? डॉक्टर नवीन दत्त जी, आप बताएं क्या इनको इलाज, मतलब आगे इलाज का तरीका और इनकी शंका का समाधान। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। देखिए, यानी हमने आपका CT स्कैन नहीं देखा है और आपके सिम्टम हमें अच्छे से नहीं पता है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपको कोविड ही है। 14/25 बता रहे हैं। हाँ, वो एक्चुअली एक स्कोर होता है और एक उसमें CT स्कैन को देख के ये बताया जाता है कि इसमें चांसेस कितने हैं कोविड होने के जी। मतलब ये कोविड जैसा कितना लग रहा है। तो अगर कोविड जैसा लग रहा हो तो फिर उस स्कोर की रेलेवेंस होती है। तो जिस हिसाब से ये बता रहे हैं, तो इसके हिसाब से वो CT उन डॉक्टर साहब को लगा कि ये कोविड का ही लग रहा है और उसका स्कोर 13 के करीब है। तो स्कोर मतलब बीमारी मॉडरेट बीमारी है, बहुत ज्यादा नहीं है। और इसमें CT स्कोर पे तो बहुत बार ऐसा होता है, जो RT-PCR है
उसकी सेंसिटिविटी मतलब वो सारे मरीजों में पॉजिटिव नहीं आता है, 20 से 30% मरीजों के अंदर नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है ये उन लोगों में से हो जिनको बीमारी तो है पर RT-PCR नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है। Yes, we've और seen that happen. जो इन्होंने स्कोर बताया है उस स्कोर की अहमियत कम होती है अगर इनकी ऑक्सीजन ठीक ठाक है, इनकी सैचुरेशन ठीक है, तो इनको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ वही पानी पीना है, चलते फिरते रहना है, और अगर बुखार आ रहा है तो क्रोसिन लेनी है और अपनी सैचुरेशन, ये 4 चीजें करनी है इनको अगर ऑक्सीजन ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन कम है तो इनको अगर 94 है या उससे नीचे है तो इनको एक बार डॉक्टर से मिल लेना चाहिए ताकि वो इसके हिसाब से या तो इन भर्ती कर सके या फिर इनको ट्रीटमेंट घर पे बता सके। जी 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 जी। डॉक्टर सत्येंद्र जी से एक सवाल और पूछेंगे जो आज का हमारा विषय है कि अगर देखें जो लोग मान लीजिए बुजुर्ग घर पर हैं, 60 साल से ज़्यादा उम्र है, डायबिटीज एक बेहद कॉमन सा रोग है, हाइपरटेंशन, ये सब रोग, इन सब में फिर लोगों को क्या कुछ एडिशनल जांच की जरूरत होती है, खास करके वो लोग जो घर पे आइसोलेशन में रह रहे हो, क्या उनका मोडस ऑपरेंडी होगा इस 14 दिन के दौरान? रिकवर के बाद, मतलब वो इन्फेक्टेड होने के बाद? जी हाँ, इन्फेक्टेड होने के बाद वही है कि सबसे पहले तो हाँ लोग कहें कि भाई जितने हमारे बुजुर्ग हैं, 45 प्लस हैं, वयस्क हैं, ये हैं, उन लोगों को वैक्सीनेट करते हैं। वैक्सीनेशन के बाद 15 दिन के बाद प्रोटेक्शन हो जाता है 70%, हॉस्पिटलाइजेशन कम से कम डिक्रीज कर जाता है। लैंसेट का स्टडी है, जर्नल मेडिकल एसोसिएशन, वहाँ अमेरिकन जर्नल का स्टडी है कि 15 दिन के बाद ही प्रोटेक्शन शुरू हो जाता है। अगर कोई एंटीबॉडी लेता है, ये सॉरी वैक्सीन लेता है, तो 15 दिन के बाद ही उसका प्रोटेक्शन शुरू हो जाता है। 15 दिन के बाद हॉस्पिटलाइजेशन 70% डिक्रीज कर देता है। 21 दिन के बाद, 3 वीक्स के बाद हॉस्पिटलाइजेशन 81% डिक्रीज कर देता है। और 1 मंथ के बाद, 4 वीक्स के बाद हॉस्पिटलाइजेशन 94% डिक्रीज। तो जब हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा तो लोग रिकवर कर जाएं घर पे। इसलिए वैक्सीनेशन पे ज्यादा वैसे लोग जो अभी वैक्सीनेटेड नहीं है, 45 प्लस के हैं, तो पहला होना चाहिए कि भाई निसंकोच वैक्सीनेशन ले, वैक्सीन ले लें। और अगर मान लिया कि वो कोविड हो गया तो 14 डेज तो करना ही है। 14 डेज में प्रिकॉशन रखना चाहिए, कोई एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक, जो हम लोगों का ये है, विटामिन सी, विटामिन, यही 4 है, देना है, प्रिकॉशन लेना है। और वो थोड़ा सा वो इम्यूनिटी बूस्टर्स देना है, जैसे कुछ हम लोगों की देशी दवाएं भी बहुत काम करती हैं, जैसे गिलो है, तुलसी का काढ़ा है। रिसर्च में तो आया है कि भाई तुलसी सेवन से, वो माइस में उन लोगों ने रिसर्च किया कि भाई तुलसी का कितना इफेक्ट है कि 25% लॉन्जिविटी बढ़ा देता है। इसलिए हमारा जो एज ओल्ड जो तुलसी है, तुलसी का सेवन, तुलसी का काढ़ा बहुत इफेक्टिव होता है। जी डॉक्टर साहब, जी जी। इसके साथ ही when it comes to diabetic patients who've had COVID and have been in a position where they've had to be hospitalized on steroids, Dr. Chaudhary, it plays a lot of havoc on their sugar levels, doesn't it? Being on steroids for diabetics. After they have recovered from COVID, how long do you think once they've come off steroids, do the sugar levels start stabilizing? Yeah, it depends upon the dose of steroids we have given with the disease, that is first. Second, the person's diabetes before this disease. If these people are having a diabetes which is very much poorly controlled, requiring high dose of medications, so it will take a long time because steroid causes further aggravation of the diabetes. Then third, depends upon the hospital protocols. We believe that steroids should be tapered very soon. However, some people think that the steroid has a role in preventing lung fibrosis. They continue steroids for months together. So it depends on the steroid use duration also. So first of all, the steroid as soon as possible we have to cut down. Second, the steroid when we are taking the dose, the patient should know how to take the insulin also, or the medication drugs they are using properly. So it is proper regulation of the diabetes and self understanding of the diabetes care. That is most important to get a control. And third important thing is that because of this disease process, the body has got a lot of alterations. So it takes, depends upon, because we have seen early in 7 days to 15 days,
they get the sugar controlled if they have a good sugar balances before, and we are not giving them steroids much after getting discharged or after a certain period of times. So I can say maximum, you can say if maximum steroid has been completely stopped, its diabetes has been well controlled before, then in hardly 7 to 10 days or in maximum 2 weeks, their sugar can be controlled with the medications, either the same medications as before, or we need some additional more medications. That is to be divided. And it is also said that if one is given steroids, you know, in the course of treatment for COVID, then it should not be stopped abruptly. It should be tapered off gradually. To what extent do you think that is correct? Because people are concerned about the use of steroids as well, especially because of mucormycosis that is being talked about a lot. In fact, we have a viewer who wants to know, Abhinav Kishore, he wants to know if high doses of steroids is taken and if it leads to mucormycosis, then why is it being prescribed to that extent? Okay, so we'll go for 2 to 3 things. So first of all is that steroids to be tapered or no? That is a very good question. I think it is a, now most of the people have become half doctor, they are well trained. So we should know that steroids should be tapered, and the dose, how to be tapered, it is clearly described by the treating physician. So you just nothing need to be panic, you just follow the instructions. We reduce the dose every 2 days, every 3 days by half and half, so that in a period of 1 week to 2 weeks, we gradually taper and stop. So only one thing you have to remember, steroids should not be stopped suddenly, because if stops steroids suddenly, it causes low BP, suddenly become vomiting, and a lot of other things happen, because steroid has totally changed the body immune system as well as hormonal system. So when you stop the steroid, all get disbalanced. So need a proper tapering. Slowly you have to do. How to taper, at what dose to taper, it is the jurisdiction of the treating physician. So we are not going to that. Secondly, he asked why steroids should be given. We remember, till now we got lot of medications for the COVID, but only drug which has been considered or proven or considered as a treatment would be effective for the severe COVID or moderate COVID per se also. So steroid is needed. It is a part of the treatment regimen for the COVID. So that is not a problem. Problem is that the chance or the fear of mucormycosis, I want to say, it is not because of the disease per se. It is because of us. Because the newspaper, gadgets, social media have given so much hype to the black fungus or mucormycosis. Like the similarly, when the COVID has come to India or come to the India, that time if you have a corona, you are going to die. But we know that corona has a percentage of mortality is only less than 2%. But we think that if corona, the is equal to death. So similarly, steroid equivalent to fungal black fungus mucormycosis. It's not like that. A person have a COVID, 80% has no symptoms. 15% will have moderate to severe symptoms, and very severe is around 5%, and mortality is 2%. So those who are having very severe, who are being very sick in the ICU, those requiring ventilators, those requiring prolonged ICU stay, those having a prior diabetes or any chronic disease, among them a subset of people are going to be vaccinated to have a black fungus or the mucormycosis. So you calculate, if your persons having 80% having no disease, then suppose they are giving steroid to 10 to 15%. Among them, it is another 5% maybe. So it is coming hardly around to 1%. If COVID is happened, in 1% of the person will have a mucormycosis. So it is hyped, it is taken on a very serious note. So it is a thing to be concerned by the treating community. It is the medical fraternity who is taken care of, judicious use of steroids, judicious use of the dose of the steroids. Then when you are giving some immunotherapy drugs, like lot of things are coming out, tocilizumab, other things, then there is a chance that you may get a fungal infection, but not that if you are giving, you are going to get it. So chance is less, but the treatment is needed to survive, to make you live, or to improve. After that, in 2 to 5% you may get that, but that we can take as an unfortunate part, but it's not in all the cases. जी, डॉक्टर नवीन दत्ता जी आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक का भी यही सवाल है कि क्या ये स्टेरॉइड और म्यूकोरमाइकोसिस दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? बेहद साफ तरीके से बताएं, लोगों के मन में बड़ा भय है, जितना कोविड का भय है उतना ही भय इस समय लोगों के दिमाग में म्यूकोरमाइकोसिस का भी है कि कहीं हम ठीक होने के बाद ये सब ब्लैक फंगस या इस तरीके की चीज़ें ना जाएं। ये
ट्रीटमेंट के दौरान खासकर आईसीयू में, या फिर जो ऑक्सीजन की नली है, या फिर ट्रीटमेंट के दौरान वहाँ से फंगस आता है, या फिर इसका ट्रीटमेंट के स्टेरॉइड से कोई संबंध है? ये हमारे दर्शक का भी सवाल है, आम जनता भी ये जानना चाहती है। तो मैं इसके बारे में एक बार आपको विस्तार से बताता हूँ। तो जो ये म्यूकरमाइकोसिस है, ये फंगस ऐसी है जो हमारे चारों तरफ है, पानी में भी है, हवा में भी है ना, ये हम सबके शरीर में भी है। तो ये हम सबके शरीर में पहले से ही होती है, और एक्टिवेट कब होती है कि इसको कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। मतलब जो हमारे शरीर में प्रेजेंट रहते हैं, मौका देखते ही जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है तो ये इन्फेक्शन कर देते हैं। तो ये इन्फेक्शन कम इम्यूनिटी, अब स्टेरॉइड ज्यादातर हम 10 दिन के लिए देते हैं, है ना, जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है स्टेरॉइड की, वो 10 दिन की है। तो इससे लंबी ड्यूरेशन में हम स्टेरॉइड्स, कई बीमारियां हैं, मतलब दर्जनों बीमारियां हैं जिनके अंदर स्टेरॉइड इससे लंबी ड्यूरेशन में, इससे लंबी डोज में हम यूज करते देते रहते हैं जी। इतना म्यूकरमाइकोसिस जितना अभी कोविड में हो रहा है, इतना पहले नहीं था। हमारे हॉस्पिटल में कम से कम 3 से 4 पेशेंट पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि या तो ऑपरेट होने के लिए आते हैं या उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, नए पेशेंट, है ना। तो इतना स्टेरॉइड का यूज होने के बाद भी पहले नहीं हो रहा था। तो कुछ ना कुछ इसके अंदर, सिर्फ स्टेरॉइड का रोल नहीं है, इसके अंदर कोविड से भी रिलेशन है। कोविड शरीर की इम्यूनिटी को कुछ कम करता है, जिसकी वजह से ये हो रही है अभी ज्यादा। अभी अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल रिसेंट डेवलपमेंट है, तो अभी 5-6 महीने लगेंगे हमें एविडेंस पता लगने में, इसमें किस चीज का कितना रोल है और क्या हम कर सकते हैं जिससे ये और भी कम हो। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि टोसिलिजुमैब वगैरह दवाई जो शरीर की इम्यूनिटी को कम करती हैं, उनसे ये बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहूंगा कि जैसे डॉक्टर अशोक ने बताया कि हमें ये देखना है फायदा कितना और नुकसान कितना जी। तो ये तो बिल्कुल आसान है ना कि स्टेरॉइड दो ही मत, कि फंगल डिजीज होगा ही नहीं। लेकिन आज की डेट में जितनी दवाइयां हम कोविड में यूज करते हैं, महंगी सस्ती, उसमें सबसे अच्छी दवाई जो जान बचाती है वो स्टेरॉइड्स है ना। ऑक्सीजन और स्टेरॉइड्स, ये 2 थेरेपी हैं मेन जो आदमी की जान बचाती हैं। और जो अगर म्यूकरमाइकोसिस होती भी है, पहली बात तो ये ज्यादातर डायबिटिक्स को होती है, जिनको पहले से शुगर हो और साथ में कोविड हो, उन्हीं में होती है ज्यादातर, ठीक है। तो अगर होती भी है तो बहुत रेयर है, मान लो 1000-10,000 मरीजों में से 2-4 को हो गई। लेकिन स्टेरॉइड जान उससे कहीं बहुत ज्यादा बचा रहा है। तो हमें जरूरत है स्टेरॉइड का यूज करने की, पर जुडिशियस यूज करने की। मतलब हम अननेसेसरी ज्यादा स्टेरॉइड ना दें, पर जरूरत का स्टेरॉइड हमें देना पड़ेगा, क्योंकि वो जाने ज्यादा बचा रहा है और म्यूकरमाइकोसिस कम हो रहा है जी। ओके, हमारे एक Okay. दर्शक जुड़े हैं, गौतम विनोद गर्ग फरीदाबाद से। विनोद, अपना सवाल पूछें। सर, हमारी बहुरानी है, वो 22 अप्रैल को पॉजिटिव हुई थी। जी, कंटिन्यू रखें, बताएं। फिर उसके बाद वो 7 से 1 मई को रिकवर होगी, ना कोई इनको सिम्टम्स थे, ना बुखार था, बस थोड़ी सी खांसी इनको लगातार बनी हुई है। तो हमने उनका ना CRP कराया जो 22 आया। ओके, आगे बोलिए। तो अब उनको क्या स्टेरॉइड देने पड़ेंगे या एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी? क्योंकि कोविड का जो प्रोटोकॉल थी वो दवाइयां तो पूरी हो गई, या दोबारा से CT स्कैन कराना पड़ेगा? डॉक्टर सत्येंद्र नारायण, हाँ, आपको कितने दिन हो गए हैं उनको कोविड पॉजिटिव आए हुए या सिम्टम शुरू हुए? स्कैन चाहे जिसको HRCT कहते हैं, फर्स्ट सिम्टम 22 अप्रैल को आया था। हम लोगों को परहेज करना चाहिए। अब कोई सिम्टम नहीं है, खाली खांसी है। एक मिनट डॉक्टर सत्येंद्र नारायण सिंह, डॉक्टर दत्त जवाब दे रहे हैं। नहीं डॉक्टर सत्येंद्र, CT स्कैन से परहेज करना तो अगर वो दे रहे हैं तो एक बार आप CT स्कैन कराते हैं। हाँ, गो अहेड डॉक्टर दत्त, यू कैन रिस्पॉन्ड। अच्छा, ओके। वो तो वो 22 को पॉजिटिव आए थे, अभी काफी दिन निकल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको कुछ नहीं। और अकेले CRP की वैल्यू, जैसे अभी जुडिशियस यूज ऑफ स्टेरॉइड्स की बात हुई है, मतलब अगर इनको हम अगर स्टेरॉइड देंगे तो वो जुडिशियस यूज नहीं होगा। इनको कोई दिक्कत नहीं है, जो डिजीज की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट निकल चुकी है, तो अभी कोई भी इलाज करने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान रखिए, ठीक है, खाना पीना उनका ठीक रखिए, पानी पिलाइए, और उनको कहें कि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज शुरू कर दें, धीरे धीरे करके चलना फिरना शुरू कर दें, वो ठीक हो जाएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जी, डॉक्टर सत्येंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि थोड़े ऐसे पेशेंट जिनका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, जो
कोमार्बिड हैं, घर पर हैं, उस कोविड संक्रमण के दौरान क्या कुछ उनको जांच की जरूरत होती है? मन लोगों का घबराया रहता है, क्या कुछ जांच कराएं डायबिटीज वाले या फिर हाइपरटेंशन वाले या फिर किडनी की बीमारियों वाले? डॉक्टर के कांटेक्ट में तो रहे, हॉस्पिटलाइज लोग, उनका जांच रेगुलर होता रहता, वो क्या करें? हाँ, उसमें जैसे किडनी और लिवर हमारे बॉडी का दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। किडनी तो किडनी फंक्शन टेस्ट और लिवर फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए, और साथ में डी डाइमर वगैरह भी करा लेना चाहिए कि क्लॉटिंग वगैरह कहीं नहीं हो रहा है चेस्ट में, चेस्ट क्लियर है, कहीं क्लॉट्स तो नहीं जमा है। माइक्रो कोगुलेशन क्लॉटिंग भी होता है इसमें, तो उसके लिए वो डी डाइमर है, सी रिएक्टिव प्रोटीन है, ये सब कराना चाहिए, थोड़ा सा करा लेना चाहिए। एलडीएच है, लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, एलडीएच जिसको कहते हैं, डी डाइमर, सी रिएक्टिव प्रोटीन, एलडीएच, ये टेस्ट कराना चाहिए, करा के देख लेना चाहिए। अगर नॉर्मल है तो ठीक है, तो थोड़ा प्रिकॉशन की जरूरत है। प्रिकॉशन देखिए हमारे यहाँ ये हमारे देश में तो फोबिया हो गया है, कोरोना फोबिया। कोरोना तो हमारे यहाँ बहुत सदियों से है, कोरोना हो रहा है, हमको कोरोना वायरस हो रहा है, ठीक हो रहा है। ये कॉमन कोल्ड वायरस का ये कॉमन कोल्ड कॉजिंग वायरस था। ये हम लोग अपने स्टूडेंट्स को मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाते हैं। थोड़ा सा चाइनीज मैनिपुलेशन से थोड़ा विरुलेंट हो गया है, वायलेंट इसका एक्शन हो गया है, और कोई बात नहीं है, इसलिए कोरोना से घबराना नहीं है। 95% केसेस तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, ओनली 5% जिनमें कोमॉर्बिडिटीज होती है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, जिनकी इम्यूनिटी लो है, वही अफेक्ट करते हैं। वो भी अगर हम लोग हिम्मत बहुत बड़ी चीज है। अगर आप हिम्मत हार जाते हैं तो अगर आप स्वस्थ भी हैं तो आप अस्वस्थ हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, वो तो हौसले की बात कर रहे हैं। गौतम, हिम्मत बहुत बड़ी चीज है। We have another viewer's question coming in. Dr. Chaudhary, a person wants to know that he tested positive on the 24th of last month, but now he's fine. When can that person go for vaccination? Yeah, this is very common things now coming up. So ideally you should go for vaccine after the test become positive 2 months after. So it is around 60 days from his test is positive, or after 6 weeks or 1.5 months from his isolation is over. So basically it is usually the when you get COVID, after 2 months you go for the vaccination as per the protocols. Okay. सत्येंद्र देवगन एक है हमारे दर्शक गौतम, वो कह रहे हैं कि 13 मई को टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया और कितने दिनों बाद हम वैक्सीन ले सकते हैं? डॉक्टर नवीन दत्त, कोवैक्सीन है कि कोविशील्ड है? और टेटनस का इंजेक्शन लगवाया, अगर मैं ठीक सुन रहा हूँ तो। कोविशील्ड है तो आप 3 महीने बाद लगवाएं कम से कम। अब तो 4 महीने का टिटनेस के बाद स्टॉप लगाएंगे नहीं डॉक्टर साहब, वो बड़ा सिंपल सा घबराए हुए हैं कि टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लिया था 13 तारीख को, 13 मई में, पिछले महीने साल माफ नहीं, करिएगा, इसी महीने, अभी 13 तारीख। हाँ, इसी 13 तारीख में माफ करिएगा। टेटनस के इंजेक्शन वो वैक्सीन ले सकते हैं, उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल ये मुझे उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, और ये एंटीवायरल या तो मेरे पास आ नहीं रही है या शायद आप ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो नहीं है। वो ले सकते हैं सेफली, कोई ले इशू नहीं। सकते हैं आराम। लेकिन अगर आपने चलिए, तो डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया। मेरे ख्याल से आप संतुष्ट होंगे कि आप अपनी वैक्सीन का डोज ले सकते हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। वी हैव अनदर क्वेश्चन कमिंग इन। कार्तिकेय त्यागी इज आस्किंग, माय मदर इज एन asthma patient, is fungus infection harmful to my mother? He's not clearly said whether she has the infection or not, or whether for that matter she has COVID or not, but this is the kind of fear that is now prevalent among people. Dr. Ashok Chaudhary. Yeah, very much rightly the concern. Those having asthmatics, most of our people are on steroids, particularly steroid as a local inhalation, they take as drops. So if it is there, then the chance of infection, but not think that is a black fungal mucormycosis. You can get any, as Dr. Naveen told, any opportunity fungal infection is common, mostly called is candida. You get some white body-like patches over the neck and throat. That is common thing, can happen. That is one of the part. Otherwise, if he is scheduled to go for vaccinations, he can go for, but being a asthma, a allergic disease, so he has to have a first review by his treating physician, then he has to go on strict protocol and strict observation to go for a vaccination. Then third,
whether fungus can cause asthma. That is very much known for one fungus called as Aspergillus. They can cause allergy and asthma, but that is been mostly not now. It may have been diagnosed long before. If it's not there, then if they are following with any of the pulmonologists, he'll do a CT scan, he'll do a few of the blood tests. He can tell that whether this fungus is there for the asthma or no. So basically now the concern too is that the asthma related to asthma before because of fungus, it is remote, but they can be known by their doctor. Two, if they get a fungal infections which will be different from the what we are fearing of black fungus, and this fungus because of asthmatic patients on medications, it is very mild and it can be treatable. And third important thing is that vaccine he has to take to protect against the COVID infection, and this should be done under supervision or a clinical advice. जी डॉक्टर नवीन दत्त जी आपसे जानना चाहेंगे कि हमने डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या इन तरीके के मरीजों की बात की जो एस्थमेटिक हैं या फिर जिनको ब्रोंकाइटिस है, इस तरीके की सांस संबंधी दिक्कतें हैं और उनको कोविड होता, वो आइसोलेशन में है, वो फिर कैसे अपने उपचार का क्या तरीका रखें? उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ अलग से नहीं है ना। एक तो अपने इनहेलर ना भूल जाएं। इवन अभी तो स्टडीज आई हैं कि जो अस्थमा के लिए इनहेलर लेते हैं हम, वो कोविड में भी हेल्प करते हैं, कोविड को भी जल्दी ठीक होने में हेल्प करते हैं। तो वो अपना रेगुलर जो इनहेलर लेते रहें, जो दवाइयाँ डॉक्टर ने दी हैं वो लेते रहें। और अगर उनकी कई बार वायरल इन्फेक्शन आपके अस्थमा को या जो सीओपीडी ब्रोंकाइटिस है उसको बढ़ा सकते हैं। अगर सांस की दिक्कत बढ़ने लगती है तो अपने डॉक्टर से एक बार बात कर लें। और जो बाकी प्रिकॉशन, बाकी जो बीमारी के लोग हैं उनके लिए थी, जैसे हाइड्रेशन मेंटेन करें, अपना एम्बुलेटरी रहें, मतलब चलते फिरते रहें, और अपनी दवाइयाँ टाइम से लेते रहें, और अपनी सिचुएशन मॉनिटर करके और अपने डॉक्टर से उसके हिसाब से संपर्क करें। तो वही उनके लिए प्रिकॉशन है। अलग से ऐसा कुछ नहीं है कि अस्थमा के मरीजों को और सीओपीडी के मरीजों को कुछ ज्यादा अलग से कुछ करना है। बस घबराना नहीं है। मतलब जो अस्थमा के पेशेंट है उनको कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ खतरा है सांस की दिक्कत होने के कारण कोरोना से, तो घबराएं नहीं, है ना। अपना धैर्य से अपना इलाज लेते रहें और आप ठीक हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे हम गौतम अपने तीनों खास मेहमानों को, डॉक्टर अशोक चौधरी जी, डॉक्टर नवीन दत्त जी और डॉक्टर सत्येंद्र नारायण जी, हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के शंका समाधान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। Thank you for joining us, and let me remind our viewers that if we've not been able to take your questions, you can join us at different timings of the day, 24, I mean all through the week as well. The next edition will be at 7 p.m. as well of Dr. Speak. So do ask your questions then as well. Thanks for joining for the moment. नमस्कार।